Hello everyone, this is Neha Soni and I'm your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well, and yes, we have started with civics. Students, we have started your chapter number 1 in our previous class, that is about understanding diversity, and we have completed our part 1 and 2 in our previous classes. You can attend those classes, and now from this video we are going to start your part number 3 of this chapter, and we will talk about unity in diversity. Students, we have discussed about the meaning of diversity, like we have discussed about the differences that we have. We all are having so many differences, students. Yes, we look different, we talk in a different way, we all are having so many differences. That's why we are talking about diversity. And students, we have discussed about equality versus inequality. We all are having so many differences. We studied about stereotypes and many more other things. Now from this video we will talk about, yes, we all are having differences, but we all are having unity in ourselves, in our heart. So that's why we will talk about unity in diversity. So let's start it. First, we are comparing two different regions of India, two different states. We have discussed about Ladakh in our previous class, and now from this video we will talk about Kerala. So we will talk about the characteristics of Kerala and many other things, and we will compare Kerala to Ladakh. So first we will talk about geographical location. So the state situated in the southwest corner of India is surrounded by sea on one side and high hills on one side. So यहाँ here take a look to the illustration. यहाँ पे आपको ये केरला दिखाई दे रहा है. डायरेक्शन क्या रहेगा? इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में है ये, ठीक है. एंड इसके वन साइड में हाई हिल्स हैं स्टूडेंट्स. लाइक हियर आई विल ड्रॉ इट फॉर यू. सो यहाँ पे क्या है? हाई हिल्स हैं, और यहाँ इन अदर साइड ये है आपका सी, ठीक है. सो ये हमने यहाँ पे देखा. देन वेरियस टाइप्स ऑफ स्पाइसेस. येस स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पाइसेस. इंडिया ने क्या दिया है? दुनिया को खाने में मसाले दिए हैं. In our ancient time, we export many kind of spices from India to other countries like Europe. अगर जो दूसरी countries थे वे यहाँ से import करने आते थे. like यहाँ बहुत ही बड़ी मात्रा में spices का trade किया जाता था. If I talk about black pepper, so black pepper को black gold of India भी कहा जाता था, ठीक है. so बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, प्रसिद्ध हैं यहाँ के spices, ठीक है. various types of spices like black pepper, लौंग, cardamom एक्सेट्रा आर ग्रोन इन द हिल्स. सो ये जो हिल्स हैं यहाँ पे क्या उगती हैं? स्पाइसेस उगते हैं. कार्डेमम हिल्स वगैरह, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये सब यहाँ देखने को मिलती है. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर भी हो रही है, ठीक है. खेती भी पॉसिबल है. राइस की भी खेती, यहाँ पे राइस का भी कल्टिवेशन जो है वो अच्छे से हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे वाटर क्या है? अवेलेबल है, फुल ऑफ वाटर, ठीक है. सबसे पहले जो हमारी मानसूनी विंड्स जो यहाँ से गुजरती हैं, सबसे पहले रेनफॉल भी कहाँ होता है? केरला में होता है, इंडिया में, ठीक है. So due to spices and proper arrangement of water transport, this state has been the center of attraction of traders since ancient time. So जो traders आ रहे थे या फिर जो यहाँ से trade करते थे, export करते थे यहाँ से, तो वे लोग attract करते थे दूसरे countries के traders को अपने spices से, और proper arrangement था water transport का, because ये जो केरला है इसका situation हमने देखा था location wise, ठीक है. So इसके one side में क्या था? सी था ना, तो इधर से वाटर ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो जाता था. शिप्स वगैरह आते थे, जाते थे, और लोड होता था माल, और अनलोड भी किया जा सकता था. सो अगर हम देखें, शिप है, अदर दूसरी भी जो हमारे सेलर्स आते थे उनके लिए भी आने में और बहुत ही ईजीनेस रहती थी, ठीक है. सो यहाँ से हमने देखा कि एंशियंट टाइम से ही ट्रेडर्स के लिए अट्रैक्शन बना रहा है केरला, अट्रैक्टिव पॉइंट रहा है, बिकॉज यहाँ के स्पाइसेस बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं, प्लस यहाँ पे आना जाना भी इजी था उन लोगों के लिए, ठीक है. फिर यहाँ से आके वो रेस्ट ऑफ द इंडिया में भी कहीं भी मूव कर सकते थे आसानी से, ठीक है.
अराइवल एंड रिलीजन ऑफ फॉरेनर्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिलीजन। सो हम बात करेंगे सबसे पहले उन लोगों की, उन फॉरेनर्स की जो दूसरी कंट्री से, अलग अलग डिफरेंट कॉन्टिनेंट से यहाँ आए और उन्होंने अपने जो वे जिस धर्म को फॉलो करते थे उस धर्म के बारे में उन्होंने यहाँ पे सभी को बताया। देन यहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी थी, इंडिया के जो लोग थे, उन्होंने उन्हें फॉलो किया और जैसे जैसे दूसरे रिलीजन का भी यहाँ पे अराइवल होता है। द फर्स्ट अरब एंड जेविश ट्रेडर केम टू केरला। सो सबसे पहले अरब और जेविश जो ट्रेडर थे वे कहाँ आए थे? केरला में आए थे। इट इज़ बिलीव्ड दैट द अपोजल ऑफ जीसस क्राइस्ट सेंट थॉमस केम हियर अबाउट 2000 ईयर्स अगो। सो ये विश्वास किया जाता है, ये बिलीव होता है, यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि जो अपोजल ऑफ जीसस क्राइस्ट आई मीन्स सेंट थॉमस जो है वो यहाँ आए थे आज की 2000 ईयर्स पहले। ठीक है, अब वे क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे तो क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोगों की संख्या इंडिया में भी बढ़ जाएगी, बिकॉज इनकी जो टीचिंग्स है उससे लोग इन्फ्लुएंस होंगे और ये बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंसर माने जाते हैं। सो इनसे प्रभावित होकर यहाँ के जो हमारे इंडियंस थे उन्होंने भी ये जो जीसस क्राइस्ट का जो धर्म है क्रिश्चियंस बन गए थे वे लोग भी। ठीक है, द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया गोज टू सेंट थॉमस। सो भारत में जो क्रिश्चियनिटी को लेकर आया है उसका क्रेडिट किसे दिया जाता है? सेंट थॉमस को। ठीक है, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मैनी अरब ट्रेडर्स केम एंड सेटल्ड हियर। सो बहुत सारे अरब ट्रेडर्स, अब आपको ये देखना है अरब कंट्रीज़ कहाँ हैं। ठीक है, सो अरब ट्रेडर्स जो हैं वो यहाँ आते थे और यहाँ आकर वे सेटल भी हो गए हैं। अब सेटल होंगे तो क्या होगा? यहाँ के लोगों के साथ अपने थॉट्स शेयर करेंगे, अपने फीलिंग्स, अपने बिलीफ, अपने थॉट्स, सारी चीज़ें, फूड, ये सब एक्सचेंज होगा और धीरे धीरे यहाँ के कल्चर से वे कुछ सीखेंगे, प्लस अपना कल्चर जो है उसे भी ट्रांसफ़र कर देंगे। सो आगे हम देखते हैं इन विच इब्न बतूता हु केम हियर अबाउट 700 ईयर्स अगो रोड द डिटेल्स ऑफ द लाइफ ऑफ मुस्लिम्स इन द ट्रैवलॉग। सो जो इब्न बतूता है, टेक अ लुक टू द इलस्ट्रेशन, ये आज के 700 ईयर्स पहले यहाँ आए थे और इन्होंने अपना जो अकाउंट लिखा, वॉट एवर ही सॉ इन इंडिया, वो सभी चीज़ें जो भी यहाँ के लोगों की कंडीशन थी, कैसी थी, क्या रिस्पेक्ट था सोसाइटी में, सो उन्होंने अपने ट्रैवलॉग में लिख डाला। और उन्होंने क्या लिखा अपने ट्रैवलॉग में? बहुत सारी चीज़ें लिखी अबाउट द सोसाइटी, अबाउट द कंट्री। सो हियर अगर हम बात करें, मुस्लिम्स हैड ग्रेट रेस्पेक्ट हियर। सो ही वाज टॉकिंग इन हिज ट्रैवलॉग दैट यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं, जो अरब कंट्रीज से और जो यहाँ मुस्लिम्स रह रहे हैं, उन्हें यहाँ बहुत ही इज्जत मिलती है। द सी रूट फ्राम यूरोप टू इंडिया वॉज डिस्कवर्ड बाय पोर्तुगीज एंड वास्को डे गामा केम टू इंडिया बाय हिज शिप। सो केरला में वाटर अरेंजमेंट ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही अच्छे थे। सो जो वास्को डिगामा है वे भी भारत आए हैं और डिस्कवरी करना, जो इंडिया की डिस्कवरी, उसका श्रेय भी किसे दिया जाता है? वास्को डिगामा को। तो अगर हम बात करें सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, ठीक है, ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? सो इसकी डिस्कवरी की थी पोर्तुगीज़ ने। सो जो पुर्तगाली थे उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। हियर यू कैन टेक अ लुक टू द इलस्ट्रेशन। वास्को डिगामा के लिए यहाँ पे ये अपने शिप के थ्रू यहाँ आए थे। These historical influences led to the development of various religions in Kerala. So केरला के अंदर अलग अलग जो डिफरेंट रिलीजन देखने को मिलते हैं, वो क्यों? बिकॉज जो हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस हुआ, यहाँ पे हिस्टोरिकल जो फैक्टर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग यहाँ आए हैं, अलग अलग ट्रैवलर्स आए थे, फॉरेनर्स आए थे, ट्रेडर्स आए थे, तो जहाँ जहाँ से भी लोग आए वे अपने वहाँ के कल्चर को यहाँ लेकर आए, यहाँ सेटल हो गए, तो यहाँ के लोगों ने उनसे बहुत कुछ अडॉप्ट कर लिया। सो इसी वजह से यहाँ पे क्या है, अलग अलग रिलीजन्स देखने को मिलते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट रिलीजन्स, जुडाइज्म, इस्लाम, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म। सो जुडाइज्म, इस्लाम, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म, यहाँ पे इनके फॉलोअर्स जो हैं वो देखे जाते हैं। शुगर ट्रेडर्स की अगर हम बात करें तो जो चीन से आने वाले हैं और भी अदर कंट्रीज से आने वाले शुगर ट्रेडर्स भी यहाँ आते थे। इसका मतलब यहाँ से क्या ट्रेड हो रहा था? शुगर का भी ट्रेड होता था। ठीक है, शुगर ट्रेडर्स ऑल्सो केम टू केरला। सो केरला में शुगर ट्रेडर्स भी आ रहे थे और बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स की भी संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। नाउ टेक अ लुक टू द थिंग्स जो हमने अभी तक डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। इफ़ वी टॉक अबाउट, इफ़ वी कंपेयर द हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस बिटवीन केरला एंड लद्दाख, हम ये देखते हैं कि अलग अलग कंट्रीज से यहाँ दोनों ही जगह पे फॉरेनर्स आते हैं। अराइवल ऑफ
फॉरेनर्स, ठीक है। देन हिस्टोरिकल जब बैकग्राउंड रहा है, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस की वजह से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, यानी कि लोगों की जो लाइफ में डाइवर्सिटी आ रही है वो उसके उस पर्टिकुलर जगह के उस रीजन के हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस की वजह से भी आती है। क्लियर? एज एविडेंस चाइनाज फिशिंग नेट हैज़ बीन फाउंड विच इज़ कॉल्ड चीना वाला। सो हमने एक एज एविडेंस के रूप में चाइना का जो फिशिंग नेट है उसको भी यहाँ स्टडी किया, और ये क्या बता रहा है, जिसे चीना वाला कहा जाता है। तो क्यों कहा जा रहा है, इसमें चीना का वर्ड का मीन क्या है? यूटेंसिल्स यूज फॉर फ्राइंग चीना चट्टी, in these the word चीन on the other hand indicates that it originated from China. So ये चीना वाला जो फिशिंग नेट है और जो चीना चट्टी है, लाइक हियर अ फ्राइंग पैन जो है हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कढ़ाई जो दिखाई दे रही है, तो इसमें जो चीन वर्ड है इससे ये इंडिकेशन मिल रहे हैं कि ये जो वर्ड है ये कहाँ से आ रहा है, चाइना से आ रहा है। ठीक है, केरला के फूड के बारे में भी बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। फिश, वेजिटेबल, राइस। ठीक है, सो केरला में जाइए और वहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड है वो खाइए और आनंद लीजिए। फेमस फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो ओणम यहाँ मनाया जाता है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे रेस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और रेस भी किसकी, बोट की। तो बोट रेस कॉम्पिटिशन भी होता है। देखिए एक इतना लंबा जो बोट है उसके ऊपर बहुत सारे लोग बैठकर उस बोट को चलाते हैं और वे कंपटीशन करते हैं। सो केरला में हमने अभी तक बात कर ली है, रिलीजन की बात की है, हमने बात किया है धर्मा की, फूड की, और यहाँ पे हमने बात की है इससे पहले अलग अलग फॉरेनर्स के क्या इन्फ्लुएंसेस रहे थे केरला पर। हियर द जोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ केरला एंड लद्दाख आर completely different from each other. Yes, we have discussed about Ladakh in our previous class students. हमने देखा है ये जो लद्दाख है, लद्दाख और यहाँ जो केरला है, here is your केरला, ओके। सो ये केरला है और यहाँ हमने लद्दाख को पढ़ा है। दोनों का जोग्राफिकल लोकेशन अगर हम देखें तो एक इंडिया के नॉर्थ में है और एक इंडिया के साउथ डायरेक्शन में पड़ रहा है। प्लस दूसरा, दोनों की जोग्राफिकल कंडीशन, क्लाइमेट एकदम अलग है। ठीक है, यहाँ ठंड है, यहाँ गर्मी है, और यहाँ रेनफॉल जो है सबसे पहले यहाँ हो रही थी, यहाँ बारिश और पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, लेकिन यहाँ हमने देखा डेजर्ट के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, सो अभी जो हम देख रहे हैं कि जोग्राफिकल जो फैक्टर्स है उसके अकॉर्डिंग अगर जोग्राफी वाइज देखें तो दोनों ही अलग अलग हैं, बट द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैज़ द सेम टाइप ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंस। दोनों की जोग्राफी अलग है लेकिन कल्चरल इन्फ्लुएंस जो हुआ है हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस की वजह से, हिस्टोरिकल जो हिस्ट्री रही है दोनों रीजन की, जहाँ पे अलग अलग देशों से लोग आए हैं, लाइक चीन से आए हैं, यूरोप से आए हैं। सो इन्होंने दोनों ही जगह के लोगों को जो है ना डिफरेंसेस बना दिए, दोनों ही लोगों को डाइवर्सिटी दी है। तो हमने देखा किसी भी पर्टिकुलर रीजन पर उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड प्लस जोग्राफिकल फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस रहता है, वहाँ के लोगों में डाइवर्सिटी देखने को जो मिल रही है ना, उसका प्रमुख कारण है वहाँ का हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल फैक्टर्स। क्लियर? बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेडर्स फ्रॉम चाइना एंड अरब। सो जो दोनों रीजन हैं वे चाइना और अरब ट्रेडर्स से इन्फ्लुएंस हुए थे, और इसी वजह से वहाँ के लोगों में क्या दिखाई दे रही है, डाइवर्सिटी। ठीक है, द ट्रेड ऑफ वूल इन द स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस इन केरला अट्रैक्ट ट्रेडर्स। सो जो वूल का ट्रेड किया जा रहा है प्लस जो स्पाइसेस हैं केरला के, अलग अलग दोनों का जोग्राफिकल लोकेशन होते हुए भी इन्होंने वहाँ की जो चीज़ें हैं उन्होंने अट्रैक्ट किया ट्रेडर्स को। और वूल ने जो पश्मीना हमने बात किया था, पश्मीना शॉल वगैरह इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे वुलन जो हमें गारमेंट्स मिलते हैं वहाँ के, तो वो फेमस है। और इसी वजह से स्पाइसेस जो है जो केरला में कल्टीवेशन किया जाता है स्पाइसेस का, उन्होंने भी ट्रेडर्स को अट्रैक्ट किया। और जब ट्रेडर्स बाहर से लोगों का आना हुआ तो उन्होंने अपने अपने जो कल्चर था, ट्रेडिशन था, उसे शेयर किया हमारे साथ, और तभी यहाँ के जो लोग हैं उनमें अलग अलग डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है,
The cultural life diversity of a region is closely related to its history and geography. So ये क्लियर हो गया है कि किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन की अगर हम बात करें तो वहाँ के लोगों में अगर जो डाइवर्सिटी दिखाई देती है तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है वहाँ की हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल जो इन्फ्लुएंसेस हुए हैं, जो फैक्टर्स हैं उनका। ठीक है, सो हमारी जो डाइवर्सिटी है, जो हमारी कल्चरल लाइफ है, वो क्लोजली रिलेटेड किससे है? हमारी हिस्ट्री से और हमारी वहाँ की जोग्राफी से। जैसा कि हमने बात की, अगर वहाँ के क्लाइमेट जो है वो हार्श कंडीशन है, ठंड है, तो वहाँ के लोगों के पहनावे में अलग अलग डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं ना। सो ये सारी चीज़ें कब तय होती हैं? उस एरिया की हिस्ट्री कैसी रही, वहाँ पे क्या किन्हीं लोगों का अराइवल हुआ, प्लस वहाँ की जोग्राफी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ कल्चर्स। सो हमने अभी देखा है अराइवल ऑफ फॉरेनर्स, उन्होंने क्या किया? अपने अपने कल्चर्स का एक्सचेंज किया, ट्रांसफ़र किया। ठीक है, हमारी भी कुछ चीज़ें वहाँ गई हैं और वहाँ के कुछ संस्कार, वहाँ के जो ट्रेडिशन, वहाँ का जो कल्चर है उसे हमने अडॉप्ट किया। ठीक है, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर वर्क, लिविंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़, नाउ डेज इट इज़ बिकमिंग अ फैशन टू अडॉप्ट न्यू कल्चर्स। सो स्टूडेंट्स, हम किसी काम के सिलसिले में या फिर किसी अदर वजह से अगर किसी डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ रहते हैं तो एक दूसरे के कल्चर को सीखते हैं। तभी तो कहते हैं ना, जैसे आपके मित्र होंगे, जैसी आपकी संगत होंगी, आप वैसे ही बनेंगे। सो इसको इस तरह से हमें देखना है कि हमारे साथ, हमारे ऊपर हिस्टोरिकली और जोग्राफिकली किन किन लोगों का सहयोग रहा है उस पर्टिकुलर रीजन के ऊपर, वहाँ के लोगों की डाइवर्सिटी के लिए। ठीक है, सो अब तो ये फैशन ही बन गया है। अच्छा, आप कुछ डिफरेंट कर रहे हो, मुझे भी उसे अडॉप्ट करना है, मैं भी वो करूँगी जो आप कर रहे हैं। सो किसी का भी नया चीज़ अगर हमें देखने को मिलती है तो हम उसे अपनाने की कोशिश करते हैं और ये फैशन बन गया है ना। India's diversity is its strength. So students, we all are having so many differences, but yes, India's diversity its strength. So हमारी जो डाइवर्सिटी है वही हमारी स्ट्रेंथ है। इंडियाज़ डाइवर्सिटी इज़ इट्स स्ट्रेंथ। सो इसे हमने देखा है कि येस, वी ऑल आर हैविंग सो मैनी डिफरेंसेस, दैट्स वाई वी बिकम यूनिक। हम अलग हैं दूसरों से और डाइवर्सिटी हमें यूनिकनेस देती है हमारी लाइफ में, और इंडिया की यही ताकत है। और हमारी ताकत किस में है? यूनिटी में। So symbols of unity in diversity: patriotic song, tricolor, national anthem, language, culture, etc. So these are the symbol of unity. During the British rule, women and men from different religions, caste, languages and regions fought for freedom together, agitated, went to jail. So अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग धर्म के फॉलोअर्स, लड़की हो, लड़का हो, मेन हो, विमेन हो, इन सभी ने एक साथ जो है हमारे लिए फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया और इनके स्ट्रगल में इन्होंने जेल भी कबूल की है। ठीक है, सो हिंदू हो, मुस्लिम हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई। ठीक है, सो वी ऑल आर यूनाइटेड एंड इंडिया में बहुत सारी जो हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं वही हमारी पावर है ना। सो यूनिटी इन आवर डाइवर्सिटी। यस, ब्रोक द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी हमारे इंडिया पे बिफोर आवर फ्रीडम, सो उनकी एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, यानी कि वे अलग अलग कम्युनिटीज़ को डिवाइड करते थे और फिर उन पे रूल करते थे। यानी कि आपको कुछ अलग कहा, मुझे कुछ अलग कहा, और हम दोनों के बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो हम क्या करेंगे? एक दूसरे से अलग हो जाएंगे ना। सो यही उनकी नीति थी, बांटो और राज करो। सो अब इस पॉलिसी को ब्रेक किसने किया? हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने। उन्होंने इस पॉलिसी को तोड़ डाला और तभी ब्रिटिश रूल जो गवर्नमेंट थी उन्हें हराया, उन्हें वापस भेजा और इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल जो है उसमें सक्सेस मिली। The Jallianwala Bagh massacre took place in Amritsar on 13 April 1919. So इसी दौरान जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, इसी दौरान एक बहुत बड़ा मैसेकर देखने को मिला स्टूडेंट्स। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट जलियांवाला बाग हत्याकांड। सो ये कब हुआ था? इट टुक प्लेस इन अमृतसर ऑन 13 अप्रैल 1919। सो वहाँ पर कुछ लोग एक साथ
क्या कर रहे थे? वे लोग शांति पसंद लोग थे, पीस लविंग पीपल थे और बड़ी ही शांति से वे एक मीटिंग में पार्टिसिपेशन दे रहे थे। मीटिंग में वे कुछ चर्चा कर रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट का उस समय जो जनरल था, दैट वाज जनरल डायर, उसे ये सूचना मिली कि कुछ लोग जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हराने के लिए मीटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और उसने बिना आव न ताव देखे लगातार जो निर्दोष लोग थे उनके ऊपर फायर कर दिया। ठीक है, और उस फायर की वजह से बहुत सारे हमारे वृद्ध, बच्चे, इन सभी की जानें चली गई। सो अभी हम इसी बारे में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। अगर हम यूनाइटेड हैं तो हमारी यूनिटी को क्या क्या चीज़ें दिखा रही है, उसके प्रमुख एक ये घटना है जिसमें हम सभी अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक साथ बैठे थे और सभी लोगों ने बिना कोई सोचे समझे इस मैस्केयर में हिंदुओं का खून भी बहा तो मुसलमान का भी खून बहा। ठीक है, सो ये जो चीज़ें हैं ये दिखाती है हमारी यूनिटी की, हम जो है ग्रेट सैक्रिफाइस भी कर सकते हैं हमारे देश के लिए। British General Dyer had fired at the peace-loving and unarmed people who were gathering in the garden and holding a मीटिंग। सो जो एक गार्डन में जलियांवाला बाग में असेंबल हुए थे और एक मीटिंग को पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस मीटिंग का उन्होंने वहाँ ऑर्गेनाइज की थी मीटिंग। सो यहाँ पे ये जलियांवाला बाग स्मारक जो है इसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। इन वीरों की याद में, इन मार्टर्स की याद में ये स्मारक भी बनाया गया है। क्या घटना थी? इट इंक्लूडेड चिल्ड्रेन ऑफ ऑल रिलीजन, यंग, ओल्ड, वीमेन एंड मैन हु वर किल्ड। सो अलग अलग डिफरेंट रिलीजन के फॉलोअर्स, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, बूढ़े भी शामिल थे और महिलाएं भी शामिल थी, सभी ने अपना अपना खून जो है ना बहा दिया। ठीक है, अ सॉन्ग वॉज संग फॉर दोज मार्टर्स। सो ये जो शहीद थे इनकी याद में एक सॉन्ग भी जो है गाया गया है। Here we will talk about the song Don't Forget the Days of Blood, O Friend. In the midst of your happiness, remember to shed a tear for us. ठीक है, The hunter has torn away every single flower to plant a flower in the desert garden, dear friend. ठीक है, Having fallen to bullets, we slept in the जलियांवाला बाग। जब हम पे गोलियां बरसाई जा रही थी तो हम उन गोलियों को खाकर उस जलियांवाला बाग में ही सो गए। हमारी याद में, हमें याद करते हुए आप हमेशा खुश रहें, हम यही दुआ करते हैं। लेकिन कभी कभी कहते ना, उन वीर शहीदों की कुर्बानी में अपने कुछ आंसू आने ही चाहिए। ठीक है, तो ज़रा याद करो कुर्बानी। तो उनकी जो कुर्बानी है, जो उन्होंने अपना ग्रेट सेक्रीफाइस दिया है, उसे की याद में हमें उन लोगों की याद में नमन करना चाहिए उन्हें, और उनकी श्रद्धांजलि उन्हें देनी चाहिए। ठीक है, To light a lamp on this lonely grave, O friend. The blood of Hindus and Muslims flows together today. आज हिंदुओं और मुसलमानों का खून एक साथ बहा है। Do soak your robe in this river of blood, dear friend. Some rot in jails while others lie in their graves. कुछ जो है अपनी कब्र में हैं और do shed a few tears for them, O friend. सो उनकी याद में कुछ आंसू ज़रूर बहाने चाहिए। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के थ्रू हमें ये पोअम जो है उसे पढ़ने का मौका मिला, ये जो सॉन्ग है उसे पढ़ने का मौका मिला। ठीक है, सो अभी हमने बात किया है स्टूडेंट्स उन वीर शहीदों की जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, और इस सॉन्ग में भी हमें ये पता चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम जिन्होंने एक साथ अपना खून बहाया है। और ये मैस्केयर में जो 13 अप्रैल 1999 को हुआ था, उसमें इन निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। ठीक है, The song and symbols that emerged during the freedom struggle keep our faith in diversity. Now we will talk about the story of national flag. So, tricolor, the flag of India, was conceived during the freedom struggle. So, ये जो हमारा flag है, the national flag of India, so ये कब conceive किया गया था? During the freedom struggle. Clear? Our flag was used as a symbol of protest against the British by people everywhere. So, जब ब्रिटिश लोगों के लिए हमने प्रोटेस्ट किया तो उन प्रोटेस्ट को दिखाने के लिए इस फ्लैग का यूज़ हम सभी करते थे। यानी कि हमारी सभाओं में, मीटिंग्स में, असेंबलीज़ में, रैलीज़ में, प्रोसेशन में हम हमारे ट्राई कलर यानी कि ये जो फ्लैग था उसे यूज़ करते थे। India's national anthem, composed by Rabindranath Tagore, is another expression of the unity of India.
सो इंडिया का जो नेशनल एंथम है वो भी हमारी यूनिटी को दिखाता है, जन गण मन अधिनायक जय हे। सो हमारे इसमें सभी स्टेट की, सभी रिवर्स की और हमारे सारे डिफरेंसेस जो हमारी इंडिया की स्ट्रेंथ है ना उसके बारे में बात की है। सो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कितना ही शानदार रचना लिखी है और इसे हम दिल से कबूल करते हैं स्टूडेंट्स। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में भी हम यहाँ देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो इन्होंने क्या आइडिया दिया था? हु गेव द आइडिया ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो इन्होंने ही एकता, अनेकता में एकता यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का आइडिया देश को दिया। Pandit Jawaharlal Nehru wrote in his book The Discovery of India that Indian unity is not something imposed from the outside. So Discovery of India जो इनकी बुक है उसमें इन्होंने ये बताया है, क्या बताया है स्टूडेंट्स, कि जो यूनिटी है इंडिया की ये कहीं बाहर से इम्पोज नहीं की गई है, ठीक है, हमारे अंदर हम सब एक हैं। ओके, it is not imposed from the outside but rather it was something deeper and within its fold the widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. So हमारे अंदर जो भी अलग अलग वेरिएशन, डिफरेंसेस, वैरायटी जो देखने को मिलती है ना हम सभी के टेस्ट में, चॉइसेस में, सो इस सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। हमारा जो एक दूसरे का ट्रेडिशन है ना इसे हम कल्चर जो है उसे एक्सेप्ट करते हैं, नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, हैंडशेक करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सब कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। वी लव ईच अदर। सो इंडिया जो है जिसकी डाइवर्सिटी ही इसकी स्ट्रेंथ है। येस, हमने ये चैप्टर में पढ़ा है कि येस वी ऑल आर हैविंग सो मैनी डिफरेंसेस एंड दैट्स आर स्ट्रेंथ। सो स्टूडेंट्स, वी हैव completed this part 3 of the chapter and yes, we will meet in our next class. Till then, take care of your health and studies. Good day my dear students.